We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the center. स्पेस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने इसरो को धन्यवाद कहा और कहा कि ये गौरवान्वित पल लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज भारत गर्व महसूस कर रहा है कि हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है और उन्होंने ये भी बताया कि कितनी मेहनत लगी चंद्रयान 3 को पहले बनाने में, इस मिशन के लिए कामयाब होने में और अब इस मिशन को लॉन्च करने में। Good afternoon, India. Last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM-3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM-3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you.
Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle, LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C-25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the UR Rao Satellite Center, so I request the Director of URSC to speak. भी अच्छा होगा, जैसा कि इसरो के चेयरमैन ने कहा, एस सोमनाथ ने कहा कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और अंत भी इसका अच्छा होगा। अब जो अगली तारीख है जिसका इंतजार है वो है 24 अगस्त। सर, तो ये ठीक 40 दिन बाद होता है। आज हम 14 जुलाई में हैं। इसरो के चेयरमैन ने कह दिया अब 24 अगस्त, वही दौर जब 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी और एन पहले वो सफलता नहीं मिल पाई। तो क्या होगा 40 दिन बाद, आप थोड़ा आसान शब्दों में बताइए। 40 दिन तक ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर लैंडर है। तो ये जब मून चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा तो उसको ऑर्बिट कम करके 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे वो, क्या आप इसमें बता सकते हैं? एक बार आप अगर इसमें बता देंगे तो जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं कि मिशन लॉन्च हो गया है और अब 40 दिन बाद क्या होगा, तो ये जो हिस्सा आप बता रहे थे बताइए एक बार। जब ये क्या कहते हैं कि अर्थ उसमें होता है, ये फेयरिंग जो है ये हट जाती है और इसी के अंदर क्या कहते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उसका अपना प्रोपल्शन सिस्टम होता है। ये जाएगा, ये हट जाएगा, ये जहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल है, इसी के अंदर स्पेसक्राफ्ट है, इसी के अंदर वो स्पेसक्राफ्ट है जिसको हम लैंडर कहते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर, इसके अंदर प्रोपल्शन मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर लैंडर है। ये अभी धरती की कक्षा के इर्द गिर्द है, अभी पहुंच गया, अभी पहुंच गया, ये हट गया है, ये हट गया है और स्पेसक्राफ्ट धरती की कक्षा के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आप एक चीज समझिएगा, ये प्रोटेक्शन है ताकि प्रोपल्शन मॉड्यूल गर्मी की वजह से हीट की फ्रिक्शन जो होती है एटमॉस्फेयर में वो उसको डैमेज न करे। उस प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर लैंडर है और लैंडर के अंदर रोवर है, और वो मतलब 1 परत, 2 परत, 3 परत हैं इसके अंदर, एक के अंदर एक के अंदर एक है, परतें हैं। हाँ, मतलब कवर। और ये 40 दिन बाद लैंडिंग होगी। 40 दिन के बाद ये नहीं रहेगा, सिर्फ वो प्रोपल्शन मॉड्यूल रहेगा। वो तो चांद क्या चूक हो गई थी 2019 में जो लैंडिंग ठीक नहीं हो पाई थी और इस बार वो दुरुस्त की गई है? उसमें क्या होता है कि 100 किलोमीटर पे जब ये रहता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी। तो सबसे पहले
वो जब मॉड्यूल निकलेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल, इसमें 4 स्टेज होती है। स्टेज 1 जब ये निकलता है तो उसकी वेलोसिटी कम करना है। तो अगर वो अंतरिक्ष में घूम रहा, वहाँ तो पैराशूट या ब्रेक एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं रेट्रो प्रोपल्शन। मतलब हम जब यहाँ से ऊपर जाते हैं तो रॉकेट ऊपर धकेलता है, जब हम चांद पे पहुंचते हैं तो उसका उल्टा होता, रिवर्स होता है। ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मोटर फायर होता है, तो इसकी स्पीड कम होते रहती है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो रिवर्स रिएक्शन है वो ठीक होता है। आइए मैं चलती हूँ और कुछ और खास मेहमान हैं। तो उसके आगे और उसके स्टेजेस 4 स्टेजेस हैं। जी जी। तो देखिए ये आपको हमारे स्टूडियो में मौजूद साइंटिस्ट बड़े अच्छे तरीके से जो चंद्रयान का प्रोटोटाइप हमारे स्टूडियो में रखा है उसके जरिए ही बता रहे थे कि अभी किस स्टेज पे है। लेकिन डॉक्टर घोष, आप कह रहे थे कि जो पहली चुनौती है वो पार कर ली है। 179 किलोमीटर का जो अर्थ के ऑर्बिट में ये चला गया है, पृथ्वी की कक्षा में। लेकिन मुझे ये बताइए, ठीक है, डॉक्टर घोष ने बड़ी अच्छी, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से बताई टेक्निकल चीज़ें क्या हैं। मुझे नॉर्मल शब्दों में बताइए, यहाँ जो ये बच्चे बैठे हैं सर हमारे स्टूडियो में, मेरी ज़िंदगी पर, आपकी ज़िंदगी पर चंद्रयान का क्या असर होगा सर अगर ये चंद्रमा पर पहुँच गया तो? हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो बार बार आता है कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। वैसे सच में देखा जाए तो पहले भी कहा गया है कि हॉलीवुड के नहीं सर, 600 करोड़ कहीं और लगा देते, मान लीजिए कोई रोड बनाने में लगा देते तो 100 से लोगों को फायदा मिलता है। चंद्रयान पे लगाने में क्या फायदा होगा? इससे कई लाभ हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें हमारी जो काबिलियत है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ये हम खाली देश के लिए ही नहीं, ये पूरे दूसरे क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, हमारे वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं जहाँ तक स्पेस का ख्याल है। दूसरी बात, इसमें हमारे पूरे संसार में हमारा नाम बढ़ेगा। नहीं, नाम बढ़ेगा, ठीक है, हम उस एलीट क्लब में शामिल हो गए जो चंद्रयान पे पहुंच गया, चंद्रमा पहुंच गया। लेकिन डॉक्टर लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं इसके लिए। नहीं, मैं ठीक है, जॉब्स, इसरो ने बहुत अच्छा काम किया, चंद्रयान 3 हमारा जा रहा है, आई विश कि वो सॉफ्ट लैंडिंग हो, उतरे। डायरेक्ट बेनिफिट क्या है सर मुझे इससे? डायरेक्ट बेनिफिट, डॉक्टर यादवेंद्र, देखिए, ये जो एक स्टडी हुई है 1960 में, जब अमेरिका ने ये अपोलो 11 प्रोग्राम किया था मून लैंडिंग का, तब भी ये सवाल उठा था। उनका प्रोग्राम 150 बिलियन से भी ज़्यादा लगा था। हम तो कह रहे हैं कि हमारा 75 मिलियन का प्रोग्राम है, उन लोगों ने 150 बिलियन, मतलब 1,500 मिलियन लगाया था। ठीक है, तो ये क्यों किया? तो उन्होंने स्टडी किया द इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स। तो उसमें ये होता है कि जब आप एक इतना कॉम्प्लेक्स मिशन लेते हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आप डेवलप करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं वो उसका स्पिन ऑफ होता है। अगर सर प्रिसाइजली पूछें तो क्या हवा की गुणवत्ता को लेकर कि चांद में हवा कैसी है, या पानी की गुणवत्ता को लेकर कि पानी कैसा है, क्या जीवन संभव है, इसको लेकर ये जो रिसर्च और स्टडी होगी, एक एग्जांपल दूंगा। आम जीवन पर कैसे मैं वही लेट मी कंप्लीट दिस। अच्छा, क्या होता है कि क्वेश्चन इज, हम हजारों करोड़ रुपया क्यों लगा रहे, इसका क्या फायदा है? और इसका आंसर है, इसके ऊपर मैंने बताया ना, स्टडी हुई है, द इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसके ऊपर इकोनॉमिक्स की रिसर्च हुई। तो मैंने बताया 1960 में अमेरिका की ग्रोथ रेट 2-3% जो थी, वो बिकॉज ऑफ दिस, इसको एक शब्द यूज होता है। नहीं, तो आप जैसे कह रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी तो नए नए कारखाने लगेंगे, नए नए, नहीं वो नहीं, मैं आपको बता, नए जॉब्स क्रिएट होंगी। एग्जैक्टली, जब वो आप इतनी टेक्नोलॉजी, जैसे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी बहुत सारी इसमें डेवलप जो हुई हैं, उससे उसको स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। कि आज हम कहते हैं अच्छी कार बना पा रहे हैं, पहले हमारे कार बेकार थे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी।